اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعرات کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم اعلان کر دیتے ہیں رات کو ہونے والے لائیو بیان کے ٹاپک کا۔ تو آئندہ کل جو بیان ہوگا رات 8:30 بجے اسی چینل پر، اس کا عنوان ہے صحبت اللہ والوں کی۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ تو اللہ والوں سے نسبت، ان سے تعلق، ان کی محبت، ان سے ملاقاتیں، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی مجلسوں میں حاضری، وہ دنیا کی گندگیوں سے انسان کو کیسے پاک کرتی ہے، اور اللہ کی محبت کتنی ضروری ہے، اور اللہ کی محبت کیسے آئے گی، یہ بہت اہم باتیں انشاءاللہ آئندہ کل 8:30 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوگا۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو آپ ضرور دیکھیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل الشفا قبرستان میں تبدیل ہو گیا۔ جی ہاں، اسرائیلی آتنکوادیوں نے کسی ہاسپٹل کو بھی نہیں چھوڑا اور معصوم دودھ پیتے بچوں پر بھی گولیاں چلائی اور ان پر بھی بم برسائے۔ اور اسرائیلی آتنکوادی فوج نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ میں ہم نے پارلیمنٹ اور حکومتی اداروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسرائیل کی بمباری میں نومولود یعنی پیدا ہونے والے بچوں سمیت 179 مریض ملبے میں گزشتہ کل دفن ہو گئے ہیں۔ ڈائریکٹر الشفا ہاسپٹل کا یہ بڑا بیان آیا ہے، اور حماس نے بھی یہ بالکل صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ غزہ پر صرف فلسطینی عوام کی حکومت ہوگی۔ مجاہدین ثابت قدم دشمن کے پاؤں اکھڑنے والے ہیں، یعنی اس طریقے سے حماس کا بھی بڑا بیان آیا ہے۔ وہیں پر محترمہ پرینکا گاندھی کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر 10 منٹ میں ایک بچے کی موت ہو رہی ہے، شرم آنی چاہیے۔ اسرائیل حماس جنگ پر پرینکا گاندھی برہم ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہر 10 منٹ پر ایک معصوم بچے کی
एक दूध पीते बच्चे की, एक बेकसूर शहरी की मौत हो रही है, शर्म आनी चाहिए। गजा के हालात बड़े बुरे हैं और अब तक 12,000 के करीब आम शहरी और मासूम और बेकसूर छोटे छोटे मासूम बच्चे, खवातीन, औरतें मारी जा चुकी है। बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, गुज़िश्ता कल यूएनओ में यानी अक़वाम मुत्तहदा में हिंदुस्तान ने कनाडा को आईना दिखा दिया और हिंदुस्तान ने कहा कि जनाब अपने मुल्क में कनाडा में बुनियाद प्रस्ती, कट्टरता और इबादत गाहों पर हमले रोकें। ये हिंदुस्तान ने बड़ा कड़ा जवाब दिया कनाडा को, लेकिन हिंदुस्तान ये भूल गया है हमारा अपना देश है, मगर क्या करें, सबसे ज्यादा कट्टरता और हिंदुत्व आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जन्म लिया है और मजहबी आतंकवाद अगर जन्म लिया है तो वह हिंदुस्तान में जन्म लिया है। रिवाल्वर रखकर, सरकारी रिवाल्वर से पुलिस वाले चलती ट्रेन में दाढ़ी और टोपियां देखकर लोगों को मार रहे हैं। हमारे प्यारे मुल्क में न दलित महफूज है, न मुसलमान महफूज है, न क्रिश्चियन महफूज है, लेकिन खैर हम बड़े बेशरम हैं। हम अगर हम पर हमें कोई सबक सिखाता है या हमें कोई बताता है कि ये गंदगी अपने मुल्क से दूर करो, तो हम दूसरे को आईना दिखाते हैं कि तुम अपने मुल्क में बुनियाद परस्ती रोको और इबादत गाहों पर हमले रोको। यानी हम बड़े बेशर्मी के साथ दूसरों को आईना दिखाते हैं, जबकि खुद आईना हमें देखना चाहिए कि हमारे यहाँ कितना बुरा हाल इन 8-9 सालों में बीजेपी के आने के बाद हुआ है। आइए, आप जानते हैं कि इस वक्त रियासत मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन है और मध्य प्रदेश में भी यूँ समझिए कि माहौल बड़ा ख़राब है। हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा करने का जितना गुर हो सकता है, बीजेपी ने भी खूब ज़बरदस्त अपना गुर अपना लिया कि हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा की जाए, और रही सही कसर एक मुस्लिम पार्टी ने पूरी कर दी है। बुरहानपुर के हालात तो ऐसे हैं कि मुसलमान अहले ईमान आपस में बिल्कुल कट मरने को तैयार है। और क्या होगा मैं आपको बताऊं क्या होगा, बस यही है कि एक मुस्लिम पार्टी आई है और फिर वो नफरतें पैदा करेगी। बुरहानपुर के हालात सबको मालूम है कि इससे पहले 400-450 वोटों से एक मुसलमान नगर अध्यक्ष की सीट हारी है, इसी पार्टी की वजह से, जो मुसलमानों के नाम पर, धर्म के नाम पर मुसलमानों को जज्बात में लाकर इलेक्शन लड़ती है, बल्कि माहौल को खराब करके बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। अभी भी मैंने उस पार्टी के एक दीनदार विधायक से पूछा कि क्या हाल है, तो उन्होंने खुद कहा है कि बुरहानपुर में मुसलमान आपस में कट मरने को तैयार है और नतीजा ये निकलेगा कि बीजेपी फिर मजबूत अंदाज में इलेक्शन जीत जाएगी। लेकिन खैर, अभी राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान आने वाला है, और उन्होंने कहा है कि आप लिख लें, मध्य प्रदेश के लोग कांग्रेस को 145 से 150 सीटें देने वाले हैं। अल्लाह करे कि राहुल गांधी की बात सच हो और नफरतें फैलाने वाली मुसलमान पार्टी भी नाकाम हो और नफरतें फैलाने वाली बीजेपी की भी नाकाम हो, ताकि मुल्क में अमन और अमान और शांति और एकता का माहौल बना रहे। यही सबकी दुआएं हैं और प्रार्थना है। इलेक्शन का ही माहौल है। अब उधर राजस्थान में भी इलेक्शन है, जी हाँ, और हमारे प्यारे प्यारे लाडले वजीर आजम, जिन्हें अभी तक मणिपुर जाने का वक्त नहीं मिल पाया है, जो अमेरिका चले गए, दुबई चले गए, बुर्ज खलीफा घूम कर आ गए, 5-5 मुल्क 5-5 देश घूम के आ गए, जिन्हें अभी मणिपुर जाने का वक्त नहीं मिला, लेकिन वो मध्य प्रदेश भी पहुंच गए हैं और वो राजस्थान भी पहुंच गए, क्योंकि दोनों जगह इलेक्शन है। अब नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन का भाषण करते हुए कांग्रेस को निशाना साधा और यह कहा कि कांग्रेस लीडरों को अपने मुल्क की कामयाबियां न देखने की जहनी बीमारी है। यानी कांग्रेस, मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस अपने मुल्क कितना कामयाबी की तरफ जा रहा है, वो कांग्रेस नहीं देख रही है। तो फिर कांग्रेस कह रही है कि हाँ मोदी जी, आपने कितना कामयाबी की तरफ ले गया है मुल्क को, सब नजर आ रहा है। जी हाँ, कितने लोगों को बेरोजगार आपने बना दिया है, सब नजर आ रहा है। कितने दंगे फसाद आपके दौर में हुए हैं, सब नजर आ रहा है। कितनी माँ बहनों की इज्जतों का खिलवाड़ हुआ है, सब नजर आ रहा है। कितनी मासूम बेटियों का रेप हुआ है, सब नजर आ रहा है। और कितनी नफरतें फैली है और कितनी मॉब लिंचिंग हुई है, सब नजर आ रहा है। तो लोग उल्टा मोदी जी को जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी, आपको इलेक्शन आ गया तो मध्य प्रदेश आने की फुर्सत मिल गई, राजस्थान आने की फुर्सत मिल गई, लेकिन आज
तक आप मुल्क की उस स्टेट में नहीं जा पाए हैं जहां पर बहनों को नंगा करके उनका रेप किया जा रहा है और उन्हें बरहना करके घुमाया जा रहा है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उत्तराखंड में जो टनल में लोग फंसे हैं, मजदूर फंसे हैं, तोदा गिरने की वजह से जो सुरंग में मजदूर फंस गए हैं, खबरें आ रही है कि 24 घंटों से फंसे लोगों की जान बचाने की जंग जारी है। बल्कि अब तो यूं समझिए कि 40 घंटे होने के करीब है और हाल यह है कि उन्हें सुराख से ऑक्सीजन दिया जा रहा है और पाइप से खाना पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। जिन रियासतों के कारकुन सुरंग में फंसे हैं उनमें बिहार, उत्तराखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आसाम और हिमाचल प्रदेश से मजदूरों का ताल्लुक है। तकरीबन 40 मजदूर अंदर फंस गए हैं। टनल हादसों को गुजरे हुए तकरीबन अब यूं समझिए कि 40 घंटे होने वाले हैं। 60 मीटर मलबा कट चुका है और 30-35 मीटर मलबा बाकी है। दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं कि उन मजदूरों की जान को बचाया जा सके और किसी भी तरीके से सुराख के जरिए से उन्हें ऑक्सीजन और पाइप के जरिए से उन्हें खाना पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। बिहार के 4, उत्तराखंड के 2, बंगाल से 3, उत्तर प्रदेश से 8, उड़ीसा से 5, झारखंड से 15, आसाम से 2 और हिमाचल प्रदेश से 1। इस तरीके से तकरीबन 40 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मणिपुर के हालात को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वो मणिपुर जहां 5-6 महीने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जाने का टाइम नहीं मिला है। दुनिया के 5 मुल्क घूमने का वक्त मिल गया लेकिन मणिपुर जाने का टाइम नहीं मिला है। मणिपुर के हालात अभी भी खराब है। जी हां, लेकिन अभी इस वक्त खबर आ रही है कि वजारत दाखिला ने मणिपुर तशद्दुद के दरमियान एक बड़ी कार्रवाई की है और शोरिश पसंद तंजीमों, हिंसा फैलाने वाली संगठनों पर पाबंदी आयद कर दी है। वजारत दाखिला, मरकजी वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन ग्रुपों पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद की गई है उनमें पीपल्स लिबरेशन आर्म यानी PLA और उसकी सियासी शाख RPF, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF और उसकी मुसल्लह शाखें शामिल है। मरकजी दाखिला ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन तमाम तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इन पर पाबंदियां लगाना ये सिर्फ समस्याओं का, मसाइल का हल नहीं है। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। हिंदू भाई के त्यौहार के दिन शुरू है। हिंदू भाइयों के खासतौर से दिवाली का त्यौहार है, लेकिन दिवाली के त्यौहार को लेकर बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि दिवाली की रात दिल्ली राजधानी की फजाओं में पटाखों का जहर फैल गया। रात गए कई इलाकों में आलूदगी बढ़ गई और अब लोगों को सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है। वहीं पर मैंने आपको कल भी बताया था कि किन किन इलाकों में कितना नुकसान हुआ है और खबरें ये भी आ रही है कि अब दुनिया में सबसे ज्यादा फजाई आलूदगी वाला, पॉल्यूशन वाला मुल्क अगर कोई बन गया है तो नंबर 1 पर इंडिया आ गया है। यानी इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, सबसे ज्यादा हवाओं का जहर फैल चुका है। इसलिए लोग अब अपील कर रहे हैं कि कोई हल इसका जायज तरीके से निकाला जाए कि त्यौहार भी मनाया जाए और फजाई आलूदगी से भी बचा जाए और लोगों की जिंदगी गुजारना भी आसान हो, सांस लेने में दुश्वारी न हो। लेकिन खैर, खबरें तो आ रही है कि इस त्यौहार के मौके पर जो जहर हवाओं में फैल रहा है वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आए दिन दिवाली के त्यौहार और दिवाली की छुट्टियों को लेकर आगरा से
बहुत बड़ी खबरें आ रही है और आगरा है, जयपुर है, गोल गुंबद है, मैसूर है, औरंगाबाद का बीबी का मकबरा है, पंचक्की है और तमाम यूँ समझिए कि सियाहती जगह जितनी है, घूमने फिरने की जो जगह हैं और ख़ासतौर से हिस्टोरिकल पैलेसेस है, जो मुग़लों की इमारतें हैं, वहाँ से बड़ी खबरें आ रही है कि खूब धूमधाम है, चाहे कुतुब मीनार हो या फिर लाल किला हो या आगरा का ताजमहल हो, हर तरफ भीड़ लगी हुई है और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग अपने बीवी बच्चों के साथ दिवाली की छुट्टियों में घूमने के लिए पहुंच चुके हैं। और खबरें आ रही है कि वही मुगलों की इमारतें जिनसे बीजेपी को, केंद्र सरकार को बड़ी नफरत है, जिनके नामों से बड़ी नफरत है, उन्हीं मुगलों की छोड़ी हुई इमारतों से करोड़ों अरबों रुपये सिर्फ एक त्यौहार की छुट्टी में, दिवाली की छुट्टी में हुकूमत खा रही है। इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा यह है कि थोड़ा सा एहसान जानना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। गद्दारी अच्छी चीज नहीं है, मुगलों का नाम पसंद नहीं, मुगलों की से नफरत है, लेकिन मुगलों की छोड़ी हुई इमारत से करोड़ों अरबों रुपये हुकूमत धूम से खा रही है। तो थोड़ी शर्म करे और मुगलों के नाम पर या किसी भी नाम पर, मुसलमानों के नाम पर नफरतें फैलाना बंद करें। इस वक्त राहुल गांधी, कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट, साबिक सदर और लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए साफ तौर से यह कहा है कि इस वक्त बीजेपी के लीडरों में लूट मार की दौड़ लगी हुई है, लूट मार की दौड़ लगी हुई है, लेकिन उनके यहां इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की टीम नहीं पहुंचती है। मिस्टर गांधी ने हरदा जिले के टेमुरनी में और नीमच में पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए बीजेपी को निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ करेगी। कांग्रेस चाहती है कि रियासत में कोई भी नौजवान बेरोजगार न रहे। पार्टी की हुकूमत, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत इस वक्त किसानों के भले के लिए आ रही है, मजदूरों के और गरीबों के भले के लिए आ रही है। जहां तक बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के लीडरों में तो लूट मार की दौड़ लगी हुई है और उसकी बड़ी वजह यह है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की टीम उनके घर नहीं जाती। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की टीम को तो मोदी जी सिर्फ अपोजिशन लीडरों के यहां ही रवाना करते हैं, भेजते हैं। बड़ी खबर इस वक्त कश्मीर से आ रही है। कश्मीर से, हमारे श्रीनगर से हमारे रिपोर्टर मौलाना हबीबुर रहमान ने बताया कि उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस वक्त बीजेपी इंतखाबात में लोगों का सामना करना नहीं चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला कश्मीर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन में लोगों का सामना नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात को तो छोड़िए, अब बल्दियाती इलेक्शन में भी टाल मटोल किया जा रहा है। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज शिमाली कश्मीर के एक इलाके में एक अवामी जलसे के बाद नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान किया है। यानी उन्होंने कहा है कि बीजेपी अब लोगों का सामना नहीं करना चाहती है, इलेक्शन आएगा तो लोग उसका कड़ा जवाब देंगे। इसलिए बीजेपी असेंबली इलेक्शन तो छोड़िए, गांव के और बल्दियाती इलेक्शन को भी टाल मटोल कर रही है। यानी बीजेपी चाहती है कि इलेक्शन न हो और लोगों का सामना न हो।